صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ہود کا آخری حصہ سماعت فرمایا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کے قصص اس میں بیان فرمائے۔ لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے، شعیب علیہ السلام کا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے اپنی رحمت سے حضرت شعیب اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا، ظالموں کو سخت عذاب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے، اس کا ذکر فرمایا، اور باقی سارا وہی ذکر ہے جو ہم پیچھے سن چکے ہیں کہ جس نے اللہ اس کے رسول کی بات مانی اس کا ٹھکانہ جنت، اور جنہوں نے مخالفت کی ان کا ٹھکانہ جہنم۔ سورہ یوسف کا آغاز ہوا۔ سورہ یوسف مکی سورت ہے، قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے 12واں نمبر ہے، ترتیب نزولی 53ویں نمبر پر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کے بھائیوں کا، آپ کے والدین کا اللہ نے اس میں تذکرہ فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ اس کا شان نزول یہ ہے، یہودیوں نے مکہ کے سرداروں سے یہ کہا کہ تم نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرو، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو، آپ کے واقعے کو بیان کریں، ہمیں بتائیں۔ اس وقت اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کا نزول فرمایا اور سارا علم اس کا پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا قصے پوچھنے والوں کے لیے اللہ فرماتا ہے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یوسف اور ان کے حقیقی بھائی بنیامین ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں۔ پھر انہوں نے مشورہ کیا، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام، ان دونوں بھائیوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام بڑا پیار کرتے تھے، تو جو باقی بھائی تھے انہیں اس چیز کا خطرہ محسوس ہوا کہ ساری توجہ ابا جی ان کی طرف ہی رکھتے ہیں، ہم سے اتنی محبت نہیں فرماتے، ہم سے اتنا پیار نہیں فرماتے۔ حسد کیا انہوں نے اور جلن محسوس ہوئی، جس کی وجہ سے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کوئی کام کرتے ہیں جس سے یوسف علیہ السلام یہاں سے چلے جائیں، جب وہ نہیں ہوں گے تو پھر ابا جی کی توجہ ہماری طرف ہوگی۔ تو آپس میں مشورہ کیا تو کہنے لگے یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں، پھر کہنے لگے ایسے کرتے ہیں کسی ملک میں چھوڑاتے ہیں، اور یہ جو رائے تھی اس کو سب نے پسند کیا کہ یہ ٹھیک ہے، کسی ملک میں چھوڑاتے ہیں، نہ وہ یہاں پہ رہیں گے، نہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف توجہ ہوگی، تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام ہماری طرف توجہ کریں گے۔ لے کر گئے، ابا جی سے اجازت مانگی کہ ہم یوسف کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے خطرہ ہے کہیں بیڑیاں کوئی حملہ نہ کر دے، کوئی نقصان نہ پہنچا دے یوسف علیہ السلام کو۔ وہ کہنے لگے ہم دیکھیں پوری ایک جماعت ہے، ہم اتنے بڑے بڑے ینگ ہیں اور بڑی اللہ نے طاقت عطا کی ہے، ہمارے ہوتے ہوئے آپ کیسے خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ یوسف کو کوئی تکلیف پہنچے گی؟ آخر کار انہوں نے اجازت عنایت فرما دی۔ پھر یہ بھائی لے کر آئے اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے
11 साल की उम्र में मकाम मरतबे से नवाजा, नबूवत की असरात ज़ाहिर फरमाए। आपने ये ख्वाब देखा कि मैंने अब्बा जी को आके बताया कि मैंने देखा है 11 सितारे, चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को समझ गए इस ख्वाब की क्या तबीर है। फरमाया, बेटा इस ख्वाब को अपने भाइयों के सामने बयान नहीं करना, भाइयों के सामने बयान नहीं करना, वो चाले चलेंगे, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, वो इत्तिफाक चाहता ही नहीं, तो चाले चलेंगे, इस ख्वाब को बयान ना करना। तो हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने छुपाए रखा। तो ये भाई सारे लेकर आए यूसुफ अलैहिस्सलाम को और उन्हें कुएं में डाल दिया। कुएं में डालकर तो ये वहां ही नहीं थे। एक काफिला गुजरा, उन्हें पानी की हाजत महसूस हुई। जब उन्होंने कुएं से डोल निकालना चाहा तो उन्होंने देखा कि उस डोल के अंदर एक हसीन और जमील खूबसूरत बच्चा मौजूद है। जब बाहर निकाला तो काफिले वाले उन पर फिदा हो गए और कहने लगे, हम तो वैसे ही मिस्र जा रहे हैं, अगर इस गुलाम को हम वहां बेचेंगे तो अच्छी खासी हमें कीमत मिलेगी। आपके भाइयों से उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद दी, कुछ रकम भाइयों को दे दी। तो भाइयों ने बेच दिया और वापसी जब पहुंचे घर में तो आपकी कमीज पर जूठा खून लगाकर, वैसे ही खून लगाया और कहा आकर कि उन्हें भेड़िए ने खा लिया है। यकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, नहीं, ये खुशबू मेरे बेटे के खून की नहीं है, तुम मन गढ़ंत बात कर रहे हो, उनके खून की नहीं है। और फरमाया, मेरे लिए सब्र ही है, सब्र के सिवा मैं कुछ नहीं कर सकता। काफिले वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर पहुंचे मिस्र, कीमत लगाई, एक बुढ़िया आई, उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदना चाहा, खरीद नहीं सकती थी, लेकिन उसे चेहरे से मालूम हुआ कि कोई आम शख्स नहीं ये लगता, ये बड़ा हसीन और जमील और खूबसूरत ये बच्चा है, ये कोई आम बच्चा नहीं हो सकता, यकीनन ये अल्लाह का कुर्ब खास वाला होगा, लेकिन वो कीमत ना लगा सका। फिर अजीज मिस्र वहां पर पहुंचा। जब उसने देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में बिकते हुए, उसने कीमत पूछी और जो कीमत बताई गई वो कीमत अदा की और वापसी लेकर आ गए अपने दरबार में। अब चूंकि अजीज मिस्र की जो जोजा थी जुलैखा, इनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। जब लेकर आए तो कहा, ये यूसुफ है, इसका नाम ये हसीन और जमील है, हमारा बच्चा नहीं, तो हम इसकी परवरिश करेंगे। तो कहा ठीक है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की परवरिश की, आप बढ़ते गए, जब जवानी के आलम में पहुंचे तो जुलैखा उनके हुस्न पर फिदा हो गई। हसीन और जमील थे, उनके हुस्न पे फिदा हुई और गुनाह की तरफ दावत दी यूसुफ अलैहिस्सलाम को। दरवाजे सारे बंद कर दिए और जो एंड पे कमरा था बादशाह के मेज़ान दरबार का, वहां पर ले गए। तो हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम आप वहां से अपनी जान छुड़ा के भागे। जब आप तशरीफ लेकर जा रहे थे, सुलेखा ने कहा, हाई तलक, हाँ मेरी तरफ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से भागे तो पीछे जुलैखा भागी कि मैं जब तक अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं करूंगी, इतना हसीन और जमील है, मैं नहीं छोड़ सकती। जब भागे आप तो पीछे से यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को पकड़ा और खींचा, आपको अपनी तरफ कमीज फट गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, दरवाजे बंद थे लेकिन अपने नबी अलैहिस्सलाम को बचाने के लिए, उनकी इज्जत बचाने के लिए गैबी तौर पे सारे दरवाजों को छोड़ दिया। जिस दरवाजे के पास यूसुफ अलैहिस्सलाम पहुंचते थे वो दरवाजा खुलता चला जाता था। जब आखिर वाला दरवाजा आया तो सामने अजीज मिस्र मौजूद था। उसने देखा इस हालत में यूसुफ अलैहिस्सलाम परेशान है, सांस फूला हुआ है, कपड़े फटे हैं, सुलेखा पीछे आ रही है, दरवाजे बंद थे, अचानक खुले तो फौरन उस वक्त जुलेखा ने इल्जाम लगा दिया। उसने कहा, ये तुम्हारी घरवाली की इज्जत की नीलामी करना चाहता था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा ये इरादा नहीं है। फिर जब वहां पर बात हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान देखें, फैसला फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम, कोई बड़ा गवाही देगा तो ये मानने से इनकार कर सकते हैं। आप ऐसा करें, आप इन्हें कहें कि अपने रिश्तेदारों में से जो गोद में बच्चा हो, बूढ़े में जो कलाम नहीं कर सकता,
उसे बुला लें, वो बोलेगा, गवाही देगा। वैसे वो बातें करने से आजिज है, लेकिन इस बात की गवाही देगा कि अल्लाह का बंदा, अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम पकीज़ा हैं, उनकी इज्जत पर कोई दाग नहीं आई। जब ये मामला हुआ तो जुलेखा के इनके मामू साथ एक छोटे बच्चे ने, छोटा बच्चा जिसको गोद में लिया था पंगूड़े में, जो कलाम नहीं कर सकता, उसने फिर बताया, उसने गवाही दी। उसने कहा कि अगर यूसुफ की कमीज सीने की जानिब से फटी है तो यूसुफ कसूरवार है, और अगर पुश्त की जानिब से फटी है तो ये औरत कसूरवार है। ये बच्चे ने गवाही दी। तो जब देखा तो कमीज पीछे से फटी हुई थी, तो अजीज मिस्र कहने लगा, ऐ औरत तौबा कर, इस्तिगफार कर, तुम औरतों की चालें बड़ी अजीब होती है, तुम बड़े बड़े लोगों को हंसा देते हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जब ये इल्जाम लगा तो इस बात पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया गया। आपने भी ये अल्लाह से गुजारिश की, बोला इल्जाम से बेहतर है मुझे कैद हो जाए। अल्लाह ने कैद आपके हिस्से में आई, फिर आप कैद में रहे। और जुलेखा पर, जो अजीज मिस्र की बीवी थी, औरतों ने तान किए। उसने कहा तो अजीज मिस्र की बीवी है और तो एक नौजवान पर फिदा हो गई, वो भी ऐसा गुलाम जो खरीद कर लेकर आई, उस पर, अपने गुलाम पर जिसको खरीदा उस पर फिदा हो गई। जब ये बात की तो हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने कहा कि इनको लाया जाए, और तो वो जमा किया और उनके हाथ में छुरियां पकड़ा दी और कहा कि तुमने जैसे ही यूसुफ को देखना है तो फल काटने हैं। अचानक से जब यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने आए, आप पर्दे से जाहिर हुए, इतने हसीन और जमील, इतना हुस्न था, चमक दमक रहा था, सारी औरतें हुस्न में फिदा हो गई, महवे हुस्न हो गई। फल काटने थे, अपने हाथ काट दिए, सब हसीनी तकलीफ महसूस नहीं हुई और कहने लगी ये कोई बशर नहीं है, ये कोई फरिश्ता लगता है सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न। तो जुलेखा कहने लगी तुम मुझे मुलामत करती थी, अब बताओ क्या ऐसे शख्स पर मैं फिदा ना होती। हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम आप कैद में रहे काफी अर्सा तक। कैद में आप ये मशहूर हुए कि तबीर रोया, ख्वाबों का इल्म अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया है। एक दिन दो कैदी ऐसे ही ख्वाब बनाकर अपनी तरफ से यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आ गए। एक ने कहा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं अंगूर से शराब निचोड़ रहा हूँ, और दूसरे ने कहा मैंने देखा है मेरे सर पर रोटी है और परिंदे उसे खा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म अता फरमाया, आपने ख्वाबों की ताबीर बताई और आपने एक से फरमाया, फरमाया तुम जिसने कहा कि मैं अंगूर से निचोड़ रहा हूँ शराब को, तुम बादशाह के दरबार में पहुंचोगे और अपने आका को शराब पिलाओगे, और दूसरे को बताया कि तुम्हें सूली दी जाएगी और परिंदे तुम्हारा गोश्त नोच कर खाएंगे। वो कहने लगे ये तो हमने अपने आप से बात करी थी, कोई ख्वाब नहीं आया। आपने फरमाया अल्लाह के नबी की जुबान से जो जुमले निकल गए अब पूरे होकर रहेंगे। ऐसे ही हुआ, एक बादशाह का बिल्कुल करीब बन गया, एक को सूली दे दी और परिंदों ने उसका गोश्त नोचा। फिर जो बादशाह के करीब होने लगा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जाकर उसे कहा कि अजीज मिस्र से मेरा किस्सा जिक्र करना, मेरी तहारत, मेरी पाकीज़गी की गवाही देना, कहीं उसे ख्याल आए और इस कैद से मैं वो भूल गया। काफी अरसे बाद अजीज मिस्र को एक ख्वाब आया। बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 तंदुरुस्त गायें 7 दुबली गायों को खा रही हैं, और फसल के 7 खोशे सरसब्ज हैं और 7 खुश्क। बादशाह ने अपने दरबारियों से ख्वाब की तबीर पूछी, ना बता सके। फिर जो आपके पास वो दरबारी वो कैदी मौजूद था ना, जो अजीज मिस्र का खास निगरान बन गया, सिक्योरिटी गार्ड बन गया, खादिम बन गया, उसने कहा ओहो मैं जानता हूँ
कैद में एक ऐसा शख्स है, अल्लाह ने उसे ख्वाबों की ताबीरों का इल्म अता फरमाया है, अगर उससे ख्वाब पूछेंगे तो वो जरूर बताएगा। अब वो कैदी खुद आ गया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास और कहा कि मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म बताएं। आपने फरमाया पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो और बादशाह को कहो कि मेरे वाक़े को लोगों के सामने बयान करे, फिर मैं यहाँ से निकलूंगा और आके तबीर बताऊंगा। तबीर आपने बताई, फरमाया इसकी तबीर ये है कि 7 साल तुम पर सरसब्जी और शादाबी आएंगे, फिर 7 साल कहत शादी आएगी। तुम्हें चाहिए कि अपनी आबादी के 7 सालों में जब सब्जी उगाई जाए उनको सेव करके रख लो, जब खुश्क साली आए ताकि तुम उसका इस्तेमाल कर सको। फिर बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरबार में तलब किया तो आपने फरमाया मैं नहीं आऊंगा जब तक तुम सारी औरतों को जमा करके मेरे पकीज़ा और नफीस होने की गवाही नहीं ले देते। बादशाह ने फिर सारी औरतों को जमा किया और सारा जो किस्सा था यूसुफ अलैहिस्सलाम का और जुलैखा का खुल के सामने आ गया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाप दामनी का एतराफ उनसे करवाया जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया था। ये सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के यहाँ तक का मामला है। हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाप दामनी साबित हुई, आपने कोई फख्र नहीं महसूस किया, बल्कि आप फरमाने लगे मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मैं अपने नफ्स की बरात का दावा नहीं कर सकता, नफ्स को बुराई का हुक्म देने वाला है, मगर मेरा रब जिस पर रहम फरमाए उसे उसके नफ्स की बुराई से बचा लेता है। ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बुराई से बचा रखा है। फिर हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आपने बादशाह से फरमाया अल्लाह ने मुझे इल्म अता फरमाया है, अगर तुम मुनासिब समझो तो मिस्र के जितने खजाने हैं उन सब का इंचार्ज मुझे बना दो, ना खजानों में कमी आएगी, ना किसी किस्म का कोई मुआवजा करना पड़ेगा। तो अजीज मिस्र ने आपको इंचार्ज मुकर्रर कर दिया और सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम इक़्तिदार में आ गए। पूरे मिस्र की हुक्मरानी हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता फरमाई। अब वो दौर था कि हर तरफ कहत साली का आलम था। किनान में जहाँ पे यकूब अलैहिस्सलाम रहते थे, आपके भाई रहते थे, वहां पर भी कहत साली का आलम था। अब वहां के जो लोग थे उन्होंने यकूब अलैहिस्सलाम से आकर कहा कि हमारे जानवर भी मर गए, हमारा जो निजाम खाने का है खत्म हो गया है, तो आप हमारे लिए कुछ इंतजाम करें। फिर आपने अपने भाइयों की ड्यूटी लगाई कि तुम जाओ अजीज मिस्र के पास और उससे जाकर अपनी कौम के लिए कुछ अनाज कुछ गल्ला लेकर आओ। हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास वो आए और आकर जब उन्होंने जिक्र किया कि हम किनान से आए हैं, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम समझ को गए कि ये किनान से आए हैं। आपने फरमाया गल्ला दे दिया और साथ फरमाया कि तुम आइंदा जब आओ तो अपने भाई को भी लेकर आना। पूछा आपने कितने भाई हो? सारे आए हैं, किसी को छोड़ के आए हो? आप तो जानते थे ये मेरे वो भाई आए हैं जिन्होंने मुझे कुएं में फेंका था। गल्ला भी दे दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चुपके से अपने खादिम को कहा कि एक अशरफियों की थैली इनके कुजाबे में रख दी जाए ताकि जब ये पहुंचे किनान में तो हमारी सखावत को देखकर फिर अपने भाई को लेकर वहां पर आए। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये ले लो गल्ला, चले जाओ, अगली दफा जब आना ना तो अपने उस भाई बिन्यामीन को भी लेकर आना, वरना तुम्हें कोई अनाज नहीं दिया जाएगा। अगली दफा ये आए हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, अब्बा जी को जाकर सारी तबीर सुनाई, सब कुछ बताया।
कि ये हमारी बात हुई है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, अजीज़ मिस्र से जो ख़जानची हैं, वज़ीर हैं वहाँ के ख़जानों के, उनसे हमारी ये बात हुई है। उन्होंने फरमाया है कि अगली दफ़ा जब आना है तो अपने भाई को लेकर आए। अब आप देख लें, हमारे पास अनाज खत्म हो चुका, गल्ला ख़त्म हो चुका, हम चाहते हैं हमारे भाई को साथ भेज दें ताकि हम जाएं और अजीज़ मिस्र हमारे भाई को देख कर हमें और ज़्यादा अता फरमाए। अब वो सारे के सारे आगे हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार पर। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब देखा बिन्यामीन आ गए, अब्बा जी ने जाते हुए ये इरशाद फरमाया, तुम चूंकि भाई हो सारे, एक ही दरवाजे से दाखिल ना हो, अलग अलग दरवाजे से जाना, इसलिए कि फरमाया शैतान बड़ी जल्दी हसद की आग भड़काता है, नजर ना कहीं लग जाए तुम्हारे मामले को, इसलिए फरमाया अलग अलग दरवाजे से जाना। ये पहुंचे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, बिन्यामीन अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। तो हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन अलैहिस्सलाम को रोकने के लिए एक खुफिया तदबीर चली, उनको सामान दिया और उनके सामान में शाही प्याला रख दिया, और फिर मुनादी ने ऐलान किया कि काफिले वालों में से किसी ने चोरी कर ली है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा कि अल्लाह की कसम, हम फसाद और चोरी करने वाले नहीं हैं। दरबारियों ने पूछा कि अगर किसी के सामान में वो प्याला मिल जाए तो उसकी क्या सजा होगी? उन्होंने कहा कि उसकी सजा ये है कि उसे रोक लिया जाए। जब प्याला तलाश किया तो उनके सामान में वो प्याला मौजूद था। ये खुफिया तदबीर के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिन्यामीन अलैहिस्सलाम को वहाँ रुकवाया, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुफिया तदबीर फरमाई। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कहने लगे, अब देखें भाइयों का बोझ अभी भी था, कहने लगे इससे पहले जो इसका भाई था वो भी चोरी कर चुका है, अब इसने चोरी कर ली है, ये बिन्यामीन ने चोरी की है, इससे पहले उसका भाई कर चुका है। हालांकि जो मिस्र के खजानों के इंचार्ज हैं वही इनके भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम है, उनके सामने बयान कर रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम देख रहे हैं कि इनको मालूम नहीं इनके सामने खड़ा कौन है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि इन्होंने मेरे साथ कौन कौन सी ज्यादती की है। मैं तो इनकी रग रग से वाकिफ हूं, लेकिन खामोशी के साथ आप सारे मामलात को देखते रहे। फिर बरादरान यूसुफ ने ये पेश की, कहा कि बिन्यामीन की बजाय हम में से किसी को रोक लें, लेकिन जाहिर है कि किसी और को रोकना मकसूद नहीं था। जो सजा थी वो यही थी, चोरी का इल्जाम बिन्यामीन पे लगा, अब उनको रोका जाए। अब जब ये सारा वाकया हुआ, वापसी पहुंचे, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को वाकया सुनाया, फिर आप शदीद दुख में मुब्तला हुए। पहले जुदाई यूसुफ में रोते रहे, अब बिन्यामीन अलैहिस्सलाम की जुदाई में सर होते रहे कि वो जुदा हो गए, वहीं रह गए। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की रोते 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 बिनाई चले गई, आपकी बिनाई चले गई, शिद्दत गम में बहुत आप हुए, और आपने फरमाया मैं अपनी इस परेशानी का इजहार सिर्फ अल्लाह से करता हूँ। फिर यकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को फरमाया कि यूसुफ और बिन्यामीन को तलाश किया जाए, और कहा कि यूसुफ और उसके भाई को तलाश करने में जब निकलो अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, क्योंकि काफिर अल्लाह की रहमत से मायूस होते हैं। मिस्र में जब पहुंचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी हकीकत हाल से भाइयों को आज़ाद फरमा दिया। जब सामने भाई खड़े हैं और इधर मर्तबा है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, जो उन्होंने किया था यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, अगर आप एक मर्तबा इशारा करते तो आपके खादिम, जिनके आप आका बन चुके थे मिस्र के, एक इशारे पर उनके भाइयों को काट के रख देते। भाई जब ये सारा वाक़या सुना और कहा यकीनन यूसुफ, अल्लाह ने तुम्हें हमसे इज्जतें, मकाम और मर्तबे अता फरमाए हैं, ये बात की शर्मसार हुए और यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ मेरे भाइयों, तुमने मुझ पर बड़ा जुल्म किया, मेरे भाई बिन्यामीन पर जुल्म किया, इल्जाम लगाए, लेकिन आज मैं यूसुफ अल्लाह की रजा के लिए तुम सबको माफ करता हूँ,
माफ़ कर दिया और फरमाया कि तुम ऐसे करो, वापसी चले जाओ और अब्बा जी को लेकर आओ और मेरी ये कमीज ले जाना। यूसुफ अलैहिस्सलाम को खबर पहुंची ना कि उनकी बिनाई चले गई। कहा मेरी ये कमीज ले जाना, ये लेकर जाओगे तो उनकी आंखों पे लगाओगे, अल्लाह उनकी बिनाई को वापस अता फरमा देगा। अब देखें कितना कमाल का अल्लाह ने एक ईमान अफरोज मज़मून बयान किया। वक्त के नबी हैं, अल्लाह के नबी हैं याकूब अलैहिस्सलाम, डायरेक्ट रब से आते हैं, लेकिन शिफा एक नबी की कमीज से ले रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इस वाक़े में ईमान वालों के लिए बड़ा अच्छा मज़मून है। जो हम निस्बतें रखते हैं, निस्बतों का एहतराम करते हैं, ये कुरान हमें सिखाता है। किसी अल्लाह वाले के जिस्म से लगी हुई कमीज भी बरकत वाली होती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज के कमाल देखें। हालांकि याकूब अलैहिस्सलाम दुआ करते, अल्लाह उसी वक्त बिनाई अता फरमा देता, लेकिन फरमाया कि ये कमीज मेरी ले जाना, उनकी आंखों पे लगाना। जैसे ही जाकर कमीज उनकी आंखों पर लगाई, अल्लाह ने जो गई हुई बिनाई थी वो दोबारा वापस अता फरमा दी। अच्छा, जब कमीज लेकर आ रहे थे ना भाई, करीब करीब पहुंचे ना, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। जो उस वक्त वहां पे भाई मौजूद थे ना, वो कहने लगे आप तो पुरानी मोहब्बत में गुम हैं, आपको अभी भी ख्याल यूसुफ आता है, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, कहां कहां वो पहुंचे होंगे। फरमाने लगे नहीं, कुछ तो है, मुझे अपने बेटे यूसुफ की खुशबू आ रही है। देखें, बचपन से चले गए, जवान हो गए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के हाकिम भी बन गए, और ताल्लुक कैसा है। फरमाया अभी भी मुझे, मेरी बिनाई चले गई लेकिन मेरी कुव्वत शामा, सोने की ताकत मौजूद है, मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम के बदन की खुशबू आ रही है। जब कमीज लेकर आए, उठाई, अल्लाह ने आंखें वापस अता फरमा दी। फिर सारे गए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, और ताज़ीम के लिए आपके 11 भाई, आपके वालिद मोहतरम और आपकी वालिदा उस वक्त जो मौजूद थी, वो सारे के सारे सजदे में गिर गए। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की ताबीर थी। आपने फरमाया मैंने 11 सितारे देखे हैं, एक चांद और सूरज को देखा है जो मुझे सजदा कर रहे हैं। सबने सजदा किया। ये ख्वाब की ताबीर थी यूसुफ अलैहिस्सलाम की। उनकी शरीयत में सजदा ताज़ीमी जायज़ था, शरीयत मुहम्मदिया में सजदा ताज़ीमी जायज़ नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि ये जो हमने किस्सा बयान किया, इसमें बड़ी निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। फिर सूरह रात का जिक्र हुआ। सूरह रात ये मक्की है, तरतीब मुसहफ के एतबार से 13वां नंबर, तरतीब नुज़ूल के एतबार से 96 नंबर पर है। इसकी एक आयत में अर-राअद का जिक्र है, इस वजह से इसका नाम रात रखा गया। इस सूरत में अल्लाह की वादानियत के दलाइल, अल्लाह ताला के मुख्तलिफ सिफात का जिक्र है, हयात बाक़ुल मौत का जिक्र है। रात ये बिजली को कहते हैं, कड़क को। इस सूरत में इसका जिक्र है, इसलिए यहाँ पर इसका नाम अर्राद रखा गया। अजसाम फल्की या बादल जब आपस में रगड़ते हैं ना, उससे पैदा होने वाली कड़क को अर्राद कहते हैं, उसे बिजली कहते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है कि कायनात में हर चीज कोई भी है, सब की सब चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह बयान करती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर झुकी हुई है। तो ये वाकयात थे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाए। आयत नंबर 17 में फरमाया आसमान से बरसने वाली बारिश के नतीजे में नदी नाले जारी होते हैं, फिर सैलाब से बुलबुले वाले जाग पैदा होते हैं। ये सारा निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत की निशानियां हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन और दुनिया की भलाइयां अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।